Thank you very much for joining us here this afternoon. Lots that's lined up like always, but our top focus is of how the Delhi Assembly session witnessed high drama today, with Delhi Assembly Speaker Vijendra Gupta suspending 22 AAP MLAs, including Leader of Opposition Atishi and Gopal Rai, from the Legislative Assembly for the whole day due to sloganeering during the Lieutenant Governor's address. Now, the AAP MLAs were demanding the reinstatement of Babasaheb Ambedkar and Bhagat Singh photos in the Chief Minister's office. The suspended MLAs were escorted outside the house. Listen in to the reactions. क्या भारतीय जनता पार्टी को ये अहंकार हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जगह ले सकते हैं? जब ये आवाज आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन के अंदर उठाई तो हमें निष्कासित कर दिया। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोदी 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 के नारे लगा रहे थे तो किसी को सदन से नहीं हटाया गया। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से नफरत करती है, उनकी तस्वीर से नफरत करती है, उनके नाम से नफरत करती है। You cannot suppress our voice. The photo of Narendra Modi was placed in place of Baba Sahib. It cannot be tolerated, or will raise our voice. Yesterday we raised our voice, didn't get any direction from a speaker. Today we raised, we will thrown out. So but you may thrown out, but you cannot suppress us. So the BJP ministers are saying this is standard protocol to have the images of the head of state on at the backdrop of all the official offices, in fact. No. We have placed Bhagat Singh portrait and Baba Sahib portrait. How dare you to just remove the portrait of Baba Sahib and placed Narendra Modi portrait in a very same place? What you understand? What you want to show? That Narendra Modi is now bigger than Baba Sahib. It's like 12 other MLAs have also been suspended. How do you react to that? देखिए, जब आपके पास सवालों का जवाब नहीं हो और आप विधायकों को निष्कासित कर दें तो बड़ा आसान तरीका है। आप में अगर हिम्मत है तो आप हमारे सवालों के जवाब दें। हम कल से पूछ रहे हैं, बड़ा सिंपल सवाल है कि भगत सिंह जी की और बाबा साहब की फोटो आपने क्यों हटाई? इसका जवाब ही नहीं है इनके पास। इनको भगत सिंह जी की क्रांतिकारी सवाल पूछने वाली सोच से प्रॉब्लम है, इनको बाबा साहब की समानता वाली सोच से प्रॉब्लम है। उसका ये रिएक्शन देखिए। BJP is saying two things. First, that the pictures are in the office, and second, it is protocol to have the head of state behind on the backdrop. They are totally misguiding. आप अभी मेरे साथ चल सकते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में कैमरा लेकर चले, वहाँ कोई फोटो नहीं लगी हुई और इनको परेशानी ही उनकी सोच से है। जब तक ये हमारे सवालों के जवाब नहीं देंगे, हम सवाल पूछते रहेंगे। Amid Modi chants by the BJP MLAs, Lieutenant Governor detailed Delhi government's priority, which includes cleaning of River Yamuna and the tackling of the pollution crisis. This comes as BJP-led government prepares to table pending CAG reports on the previous AAP administration. Now, sources indicate that 2 to 3 of the 14 reports, including one on the former liquor policy, will be presented today, while the Sheesh Mahal audit is unlikely. And as per sources also suggesting to Times Network, CAG audit on Delhi's pollution reportedly highlights flaws, inaccuracies and non-compliance with standard norms. हमारा वादा था, देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था, अरविंद केजरीवाल जी के घोटाले जिनको 3 साल से दबाकर बैठे हैं, ये पहली सरकार थी जब हाई कोर्ट में नेता विपक्ष को जाना पड़ता है कैग रिपोर्ट को टेबल कराने के लिए। लेकिन अब आज कैग रिपोर्ट टेबल होगी। अरविंद केजरीवाल जी के घोटालों को बेनशर किया जाएगा। जो दोनों हाथों से उनके और उनके मंत्रियों ने दिल्ली को लूटा था, उसका हिसाब दिल्ली के लोगों के सामने रखा जाएगा। ये अभी 14 कैग रिपोर्ट हैं। अभी इसके बाद उनके खुद के घर शीश महल की रिपोर्ट आएगी। उनके ऑफिस, आप सुनकर हैरान होंगे, मुख्यमंत्री ने अपने ऑफिस के ऊपर भी कोई 2-4 करोड़ नहीं लगाया। शीला दीक्षित जी जो ऑफिस छोड़ के गई थी, उसके बाद जो ऑफिस अब आप देख रहे हैं वो शीश महल से भी कहीं आगे है और उस पे भी सैकड़ों करोड़ रुपया लगा है। वो भी अब के आपके सामने आएगा। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट दिन है।
they have to answer each and every corruption which they have done in the previous government. जहां तक केजरीवाल साहब का सवाल है, केजरीवाल से लेके आतिशी से लेकर और सोमनाथ भारती तक, इन सब के जेल जाने की तैयारी है। पहला मुद्दा शराब नीति का है, जिसमें तो कोर्ट से ही कोर्ट ही इनको जेल में भेजेगा। लेकिन जिस तरह के घोटाले, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में घोटाला हुआ, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में घोटाला हुआ, चाहे वो जल बोर्ड में घोटाला हुआ, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमरों में घोटाला हुआ, इन सब का जवाब एक एक परत खुलेगी और जो भ्रष्टाचार दिल्ली में हुआ है, दिल्ली के लोगों का जो पैसा है, उस पैसे का जवाब इनको देना पड़ेगा। Both my colleagues, Shritika Tiwari as well as Nikhil Lakhwani, join me for more as far as this is concerned. Let me first cut across to Kritika. Kritika, good afternoon. With all that we've seen, and you in fact getting reactions as well, this heated exchange was expected, but the manner in which this has panned out just within a couple of minutes and what we really saw, with not just drama, but how this is going to ensue for the rest of the session, this is just day 2. Well, definitely this is setting the tone for how the Legislative Assembly is going to continue. Requesting our camera person to also show you the visuals of the Aam Aadmi Party MLAs that were in fact suspended. Sir, you're joining us live on Mirror now currently. ये जो suspension हुआ है, आप लोग कह रहे हैं कि protest will continue जब तक photos वापस नहीं लगा दी जाती हैं। इससे पर चर्चा कैसे आगे बढ़ेगी सदन में? मैडम, वो बाबा साहब के लिए एक फोटो नहीं लगा सकते? बाबा साहब ने संविधान लिखा है इस देश का। हाँ, आज हम लोग विधायक बने हैं, तो बाबा साहब के कारण से तो बने हैं, तो वो क्या बाबा साहब की फोटो तक नहीं लगा सकते? तो इतने जिद्द हो गए, इतनी जिद्दी हो गए, उनको एक ऑर्डर कर सकते हैं, बस सबके सब जगह बाबा साहब की फोटो लग जाएगी और वो उसी टाइम भगत सिंह जी की भी फोटो लगेगी। लेकिन इनकी मानसिकता नहीं है ना। सर, बीजेपी बार बार कह रही है कि कमरे में बाकी जगह पर है पिक्चर्स भगत सिंह की भी और अम्बेडकर जी की। कल हम लोग गए थे और रेखा जी का ऑफिस था इधर, और वहां पर हम लोग गए थे और एक नहीं गए थे, 22 विधायक गए थे और सभी विधायकों ने देखा था कि कोई भी उसमें फोटो नहीं लगी। रही बात, इन्होंने जो ऑफिस दिखाया वो दिल्ली सचिवालय का ऑफिस दिखाया, लेकिन ये विधानसभा का जो ऑफिस था हम लोग उसमें गए थे। इन्होंने सोशल मीडिया में जाके लोगों को गुमराह करके वो वाली फोटो दिखा दी उधर की। इधर की फोटो जो हमने जिस टॉपिक पे बात की थी और जहाँ की बात की थी वहाँ की उन्होंने बैकड्रॉप की। सर, फाइनल क्वेश्चन यही रहेगा, कैग रिपोर्ट्स आज टेबल होनी है। बीजेपी का कहना है कि उससे बचने के लिए आम आदमी पार्टी के एमएलएज ऐसा कर रहे हैं। मैडम, कैग रिपोर्ट में सब कुछ सही निकलेगा, वो लिफाफा सील होके आता है और आज निकलेगा। जो भी होगा उसकी हम सामना करेंगे। हमने कोई हेरा फेरी थोड़ी ना कर रखी है। जो सही है सही बताया जाएगा। उसमें हम कोई ये तो केवल बता रहे हैं। हम तो बाबा साहब की बात कर रही है, कैग रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। कैग रिपोर्ट भी आएगी, वो रुकेगी तो है नहीं, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं बाबा साहब की फोटो जो है वो लगा दे। Thank you for speaking to us. So this is what the Aam Aadmi Party is also continuously telling us, how they will continue with their protests unless and until the reshuffling of, in fact, the images take place. Earlier, when we were speaking to Arvinder Singh Lovely, who was also a part of the Congress-led government in Delhi, he had also talked about how he had the portraits of the then President Abdul Kalam as well as Prime Minister as well during his tenure as the Education Minister. So this is a standard protocol. This is the retort by the BJP. Earlier we saw that about for half an hour, 40 minutes, Atishi, along with all MLAs that have now been suspended of the Aam Aadmi Party, sat right here. This is the statue of, in fact, Dr. B.R. Ambedkar. They sat right under this statue and protested with the posters of Dr. Ambedkar, reiterating how it is, in fact, the BJP which has time and again been disrespecting the memory of Dr. Ambedkar. Also alluded to the instance of Home Minister Amit Shah calling out Ambedkar's name multiple time in the parliament. So this was also continuing. The BJP, however, continues to allege that this is just diversionary tactics to escape from a discussion on the CAG reports, which are to be tabled in just a short while from now. Over to you, Nivedna. All right, fair enough. Since you got us that reaction, and what you're looking at is in terms of what the BJP alleges, taking that point across to Nikhil. Nikhil, good afternoon to you as well. I'm going to come back to you, but we're given to understand a lot more that's currently happening in the assembly. Let's cut across to the same. बढ़ावा देती है, इसे संवैधानिक प्रहरी भी कहा जाता है और इसकी कार्यप्रणाली को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना कहा है। सीएजी जनता, विधायिका और कार्यपालिका को यह स्वतंत्र और विश्वसनीय आश्वासन देती है कि सार्वजनिक धन एकत्रित किया जा रहा है और उसका प्रभावी ढंग से
कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वर्ष 17-18 के बाद से 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में विपक्ष के तत्कालीन नेता अर्थात उस समय मैं विपक्ष का नेता था के नेतृत्व में तत्कालीन विपक्षी विधायकों ने, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, उसमें से 5 सदस्य हैं, ने सीएजी रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने के लिए माननीय राष्ट्रपति, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष, तत्कालीन मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव से अनुरोध किया था। राज्य की वित्तीय हालत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी था। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। इस संबंध में मैं सदस्यों का ध्यान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1821/2024 में दिनांक 24 जनवरी 2025 को दिए गए अपने फैसले में की गई टिप्पणी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। साथियों, ये जो सीएजी की रिपोर्ट आज प्रस्तुत की जा रही है, वास्तविकता में एक भ्रांति फैलाई गई, जिसको मैं सदन के समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं कि रिपोर्ट स्पीकर को दे दी गई है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है इस पूरे मामले में, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सीएजी की रिपोर्ट को किस तरह से दबाया गया। हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया 39 पैरा 39 it would be supervised of the constitutional mandate to withhold these reports from the legislature for an inordinately long period after the same have been forwarded by the CAG to the concerned government। अब मैं इसका अनुवादित पक्ष पढ़ रहा हूं। इन रिपोर्टों को सीएजी द्वारा संबंधित सरकार को भेजे जाने के बाद इन्हें विधायिका से अर्थात सदन से सदस्यों से बहुत लंबे समय तक रोके रखना संवैधानिक जनादेश के विरुद्ध होगा। ये हाई कोर्ट की टिप्पणी है। दूसरा, इट इज क्वाइट एविडेंट 41 पैरा हाई कोर्ट के फैसले का, it is quite evident that most of these CAG reports were kept pending with the respondent number 1 Delhi government, respondent number 2 Chief Minister for an inordinately long period of time। यह स्पष्ट है कि इनमें से अधिकांश CAG रिपोर्ट प्रतिवादी दिल्ली सरकार और प्रतिवादी मुख्यमंत्री के पास लंबे समय तक लंबित रखी गई। Para 43, it is also evident that the concerned respondent, Government of NCT, was remiss in forwarding the concerned CAG reports to the LG as mandated under Article 151(2) of the Constitution of India. Even after this aspect was staunchly agitated by filing writ petition bearing number WP 15341/2024। कोर्ट ने कहा, यह भी स्पष्ट है कि संबंधित प्रतिवादी दिल्ली सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत उपराज्यपाल को संबंधित सीएजी रिपोर्ट अग्रेषित करने में लापरवाही बरती, जब जानबूझकर उसको रोके रखा, जबकि इस पहलू को रिट याचिका दायर करके जोरदार तरीके से उठाया गया था। अर्थात संविधान की अनुच्छेद 151(2) का खुला उल्लंघन हुआ और उस अनुच्छेद के अनुसार सरकार को यह रिपोर्ट एलजी के पास समय रहते भेजनी थी, लेकिन जानबूझकर सरकार ने रिपोर्ट को अपने पास दबाए रखा। ये हाई कोर्ट ने, ये जब आप लोग चर्चा में भाग लें तो आपको तथ्य आपके समक्ष होने चाहिए।
Para 45. Even thereafter, the respondent, Government of Delhi, did not act with alacrity in the matter. इसके बाद भी दिल्ली सरकार ने मामले में तत्परता से काम नहीं लिया। कोर्ट में आने के बाद भी सरकार अड़ी रही रिपोर्ट को अपने पास दबा के रखने में। 46 ये हाई कोर्ट की टिप्पणियां पढ़ रहा हूं जो किस प्रकार से संवैधानिक शक्तियों का उल्लंघन हुआ है, किस तरह से रिपोर्ट को छुपाया गया है। 46. It is quite evident there has been an inordinate delay on the part of the respondent, Government of Delhi, in taking requisite steps for laying the CAG reports before the Legislative Assembly. The sequence of events and the timeliness reveal a disdainful disregard by the Government of Delhi of its constitutional obligation. यह बिल्कुल स्पष्ट है, हाई कोर्ट कहता है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रतिवादियों दिल्ली सरकार की ओर से विधानसभा के समक्ष सीएजी रिपोर्ट रखने के लिए अपेक्षित कदम उठाने में अत्यधिक देरी की गई। घटनाओं का क्रम और समयबद्धता प्रतिवादियों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपने संवैधानिक दायित्वों के प्रति तिरस्कारपूर्ण उपेक्षा को दर्शाते हैं। अर्थात दिल्ली सरकार ने संवैधानिक दायित्वों का तिरस्कार किया, ये हाई कोर्ट की टिप्पणी में कहा गया रिपोर्ट को पेश ना करके। ये माननीय, these are the words of the Honorable High Court. These are very critical and strong observations. In para 49, the Honorable Court has said, it is directed that once the Legislative Assembly is constituted and summoned pursuant to the upcoming elections, requisite steps shall be taken by the respondent, Government of Delhi, inter alia under Rule 24, 27 and 289 of the Rules of Procedure for the purpose of laying the CAG reports as expeditiously as possible. यह माननीय उच्च न्यायालय के शब्द है, यह बहुत ही गंभीर और कड़ी टिप्पणी है। इसके अलावा पैरा 49 में माननीय न्यायालय ने कहा है, यह निर्देश दिया जाता है कि आगामी चुनावों के बाद जैसे ही विधानसभा का गठन होता है और सदन को आहूत किया जाता है, दिल्ली सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ साथ प्रक्रिया नियमों के नियम 24, 27 और 289 के तहत सीएजी रिपोर्ट को यथाशीघ्र सदन के पटल पर रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। अतः यह बहुत ही खुशी की बात है कि नई सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के मद्देनजर और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए दिल्ली की जनता के प्रति पहले ही सत्र में पहले ही दिन आज सीएजी रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत किया।